Okay, so yesterday we have studied about the antibiotics, how they are synthesized, and today we are doing what the precautions we should take when we are taking beta antibiotics. So what are the different precautions you should take while taking the antibiotics? Okay, so the first precaution is that you should take only from a qualified doctor. You know better which antibiotic can be used for the different diseases to be taken regularly at the right time. जैसे मैंने कल भी आपको बताया है ना. It's important. It can come for 3 marks in the exams. ठीक है. तो precautions, what are the different precaution you must take while taking antibiotics? Right. While taking antibiotics. Please, bete, come at the right time. It's very difficult. Okay. So precaution while taking antibiotics. Okay. The first precaution is you must take from a qualified doctor. While taking the medicine, you must take the advice from a qualified doctor. The voice is audible but very low. How can I shout now? No, it's okay. Just I am taking my cup. ठीक है. एक तो आपने क्वालिफाइड डॉक्टर से लेनी है अपनी मेडिसिन. दूसरी, ठीक है, you must complete entire course of the antibiotics. If you are not completing the entire course, like I suggested yesterday also, you have taken today, आपने आधे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार लिए और आधे आपके रह गए और फिर से आपकी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाएंगे और अगेन फिर आप मेडिसिन लेने जाओगे. हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, जी हमें 2 डोज ही बना दो, हम तो ठीक हो जाएंगे. हमें गिव मी 1 डोज, हम 1 डोज से ठीक हो जाएंगे. यस, एक बार आपकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है बेटे, बट जब तक आप कोर्स पूरा नहीं करते अगेन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं. तो एक बार अगर खाया होगा तो वापिस से वो डिजीज आने में टाइम लग जाती है. इन द अदर वेज मीन्स आपकी फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान से लड़ रही है एंड हमने क्या किया, हमने अपने आधे सोल्जर्स गिरा दिए और उसके बाद हमें थोड़ी सी शांति मिल गई है, आधे हाय मर गए, चलो 1 डोज से इतना ही हमें इन द वन फाइट वी विन. ठीक है, बट वो उतनी देर में जो हाफ बचे हैं वो और हाफ को ले आएंगे. The course is that you have to kill all the microorganisms present in your body, not half of them. ठीक है, you should complete the entire course of the antibiotics. If doctor have prescribed to take you for the 3 days, means you have to take for the 3 days itself. Not taking for the 2 days will be effective for you. The disease will come again and again. ठीक है, so first you can take from a good doctor, good advisor, qualified doctor must be there. Second, the entire course of the antibiotic should be complete. You must completely destroy the disease causing microorganism. ठीक है, एंड नाउ ये नहीं कि हमने आज सुबह ले ली, दोपहर को भी ले लें, रात को भी ले लें, मतलब जैसे मर्जी मन करे लेते जाए, ऐसा नहीं है बेटे. द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन व्हेन ever it is needed. It shouldn't taken in the wrong doses. ठीक है, मीन्स हमने आज मन किया सुबह आधी खा ली, ठीक है, और दोपहर को मन किया 1 पूरी खा ली, पहले हाफ खा लो. ठीक है, तो डोज कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, ओके, रॉन्ग डोज नहीं लेनी आपने. एंड इट शुड बी टेकन व्हेन इट इज नीडेड एंड इट शुड नॉट टेकन इन द रॉन्ग डोजेस एंड ऑल. ठीक है, got it? So if you will take unnecessarily the antibiotics, what will happen? The beneficial microorganism, that is beneficial bacteria, will also be killed.
okay, will also be killed. And when we are suffering from cold and all, why to take antibiotics always? I have suggested you when you're suffering from the cold, you will not take antibiotics for the first 3 days. ठीक है, आफ्टर 3 days जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद लेनी होती है। ये नहीं हमने कोल्ड वगैरह में लेनी शुरू कर देनी, आज हमें कोल्ड हुआ और आज ही हमने खानी शुरू कर ली। ये आप पैरासीटामोल खाओ पहले, आप कोल्ड को कम करने के लिए खाओ, फिर अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो तो देन यू विल गो फॉर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो टू कंपाइल प्रिकॉशंस क्या लोगे? एक तो आपको एंटीबायोटिक, एक you can take advice from a qualified doctor. ठीक है, when you will take advice from a qualified doctor, it will obviously beneficial to you. Then you must complete the entire course of the antibiotics. When you will complete entire course of the antibiotics, you will kill all the microorganisms present in your body. ठीक है, and if you will kill, the disease will be completely over. ठीक, and then we should take antibiotics when they are needed and in the proper doses, not in the wrong doses. ठीक है, you will not take half सुबह and noon में पूरी, this thing you will not do. ठीक है, this make the antibiotic less effective to your body. ठीक, so antibiotic should be taken whenever you feel necessary to it. Unnecessary, you will not take antibiotic because it can kill the beneficial microorganisms, that is bacteria. As antibiotics are nothing, these are the drugs to kill the bacteria only in our body. ठीक है, ये viruses के ऊपर effective नहीं है, ये bacteria के ऊपर ही effective है. So antibiotics should not taken when we are suffering from cold, क्योंकि जो cold है ना बेटे, वो एक वायरल डिजीज है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो हम क्यों लेंगे इसको? हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, it shouldn't be taken when we are suffering from cold or flu, as that diseases are caused by viruses, and antibiotics are effective against only bacteria, not against the viruses. ठीक है, when you should take, as I told you, जब वायरस एंटर होता है ना बेटे, तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया भी एक्टिव होने शुरू होते हैं, बट 3 days वेट करो। ये नहीं कि कॉमन कोल्ड में लेना शुरू कर दो, इतना जल्दी नहीं लेना आपने। ठीक है, एक तो आपने क्वालिफाइड डॉक्टर से अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके, एडवाइस लेके कि मैं कौन सी लूं। ठीक है, फिर आपने एंटायर कोर्स पूरा करना है, आपने रॉन्ग डोजेस नहीं लेनी, आपने अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं खानी, और आपने कोल्ड फ्लू वगैरह में एंटीबायोटिक नहीं लेनी। गॉट द पॉइंट? एनी डाउट फ्रॉम दिस? यस, एनी डाउट? स्टॉप इफ द साइड, you can stop it. Some of the antibiotics cause loose motion and all, depending upon which type of antibiotic suits you. Not only suits you, but it depends on the type of disease also. You can't take so strong always. Okay. Now next is how the vaccines are produced. As I have told you before also, what is the difference between a vaccine and a of vaccine? ठीक है, वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस होती है? ठीक है, अच्छा, वैक्सीन को प्रोड्यूस करने से पहले लेट मी टॉक अबाउट, कैन एनीवन टेल मी, फर्स्ट मैंने बताया आपको जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलिन थी, और वो बनाई किससे गई थी बेटे? पेनिसिलियम रोटैटम। ठीक है, पहले तो विल कवर एंटीबायोटिक्स। कैन एनीवन टेल मी who is the scientist behind the first antibiotic? Can anyone? Yes. Not the vaccine बेटे, एंटीबायोटिक जो पहली बनी है पेनिसिलिन, वो किस साइंटिस्ट के कारण बनी? Anyone? Yes, Rhythm. Alexander Fleming. Alexander Fleming. So this
ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसके कारण वी गॉट द फर्स्ट वी कैन से एंटीबैक्टीरियल ड्रग या एंटीबायोटिक, दैट इज पेनिसिलिन। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब हम देखें किसने ऐसा क्या हुआ, इसको कैसे पता चला इस ड्रग के बारे में। लेट अस सी कि क्या कर रहा था कि ही कम टू नो अबाउट दिस ड्रग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटे एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के साथ डील कर रहा था, दैट इज स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, राइट डाउन द स्पेलिंग, स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, he was dealing with this microorganism in the lab, and when he was dealing with this microorganism in the lab, उसने क्या देखा कि इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के आसपास कुछ ना ग्रीन कलर का एक मोल्ड है, उसकी स्पोर्स पड़ी हैं। ठीक है, वो स्पोर्स थी पेनिसिलियम नोटाटम की। ठीक, और जहां पे वो स्पोर्स थी, जहां पे वो ग्रीन मोल्ड था, वहां पे ये ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक रही थी। ठीक है, इसका मतलब उसने उस पेनिसिलियम नोटाटम से फिर पेनिसिलिन बनाई, एंड वो एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह हम आज तक यूज करते हैं। नाउ तो वी हैव सो मेनी एंटीबायोटिक्स इन मार्केट। ठीक है, so first antibiotics is prepared by this scientist known as Alexander Fleming. What he was doing, he was working with a bacteria, staphylococci bacteria in the lab, and what he have found is suddenly find the spores of some fungus there, green mold is there. That green mold was Penicillium notatum. ठीक है, when he found that Penicillium notatum on the plate, he observed that when this Penicillium notatum is present, there is no growth or growth vanishes. ठीक है, staphylococci growth vanishes and the bacteria is killed. These are disease causing bacteria, they are killed. So by knowing this, he have synthesized the drug, the medicine known as penicillin. Got the point? Okay bete, any doubt? Board blur hai, that is why I am speaking again and again. Okay Mansvi, if you're not getting, I'll speak the spelling for you. STAPHYLOCOCCI. ठीक है, so I can't help it bete. So you should write what I am saying and better clear the concepts. I am audible now? It is in 1929 bete. Alexander Fleming had done the this formation of the drug is in 1929. He was working with staphylococci, and that time he recognized the Penicillium notatum and penicillin drug is formed. Yes, Mansvi, I am audible. If any doubt, you can ask. Yes, bete. Where are you? Okay. So next is now, let us do the production of the vaccine. As I have already told you, bete, vaccine is nothing but the killed microorganism itself. ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये समझाया हुआ है वैक्सीन में क्या है। अब जैसे कोरोना वैक्सीन लग रही है तो उसमें कोविड के ही जर्म्स डाले जाते हैं जो कि किल करके डाले जाते हैं। ठीक है, जो कि किल करके डाले जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये क्या चीज है, वैक्सीन में भी क्या है, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली. Vaccine is also consisting of microorganism, means but they are killed. ठीक है, so what is vaccine? You can write a small dose of dead and weakened disease causing microbes. ठीक है, so there is a small dose injection से लगाई जाती है जिसमें dead या weakened disease causing microbes है. ठीक है,
दे आर डेड, और हम कह सकते हैं वीक, ठीक है। डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करवाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, सोल्जर भेजे जाते हैं जिनको खिलाया पिलाया ना हो और बस खाली पेट भेज दिए कि एनर्जी है नहीं इनमें, ये कैसे लड़ेंगे और ये अच्छे से फाइट कर नहीं सकते, मगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन सोल्जर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में है, यू कैन राइट नाउ अ स्मॉल डोज ऑफ डेड एंड और वीकेंड disease causing microbes are injected to stimulate the immune response to, yes, half dead, ठीक है, half dead, ठीक है, but it to stimulate the immune response. Again I am repeating for you, a small dose of dead and weakened disease causing microbes are used to stimulate the immune response, that is our immune system को active करते हैं, ठीक, okay, clear to you everyone, this cleared, okay। now हमारी बॉडी को जो ये रिस्पॉन्स देना, इसे क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ वन बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज, द एबिलिटी ऑफ one's body to resist disease is called immunity, ठीक है। हमारी बॉडी की कितनी एबिलिटी है कि उस डिजीज के खिलाफ लड़ ले, उसे बेटे इम्यूनिटी कहा जाता है। तो किसी की बॉडी के पास द डिजीज को रेजिस्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, हम कहते हैं उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और किसी के पास जो ये एबिलिटी है वो कम होती है, हम कहते हैं उसका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है। अब इस इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए हमने क्या टेक्निक अप्लाई करी है, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन, ठीक है। इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाय अ टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। हम जब वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उस डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी है उसका, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हमारी जो बॉडी है बेटे इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, ठीक है। जब हम कोविड की वैक्सीन लगवा के आते हैं तो उसमें क्या है, कोविड के ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये नहीं वैक्सीन लगवा के हम इधर उधर घूमने जाएंगे। जब वैक्सीन लगा के आते हो यू मस्ट सिट समवेयर एंड टेक रेस्ट बिकॉज योर बॉडी इज फाइटिंग विद द डिजीज, ठीक है। there are certain microorganisms present here, your immune system is becoming active that time, so you can resist that disease, okay। and the whole technique while we are going for the injection is known as vaccination. Why vaccination is done, why vaccination drive is done nowadays, it is started for 15 to 18 years children also, to provide the immunity against the particular disease, okay। this technique called vaccination is developed, got the point। so many vaccination is available in the market. This I am taking the example of COVID because it is going nowadays, but so many examples are there, from the small when you are baby and now you are grown up, till date we are vaccinated by different disease. So like cholera is there, tuberculosis is there, tetanus is there, so many. We are having your birth chart, there is a schedule planned for you, that is called immunization schedule, ठीक है। वो पर्टिकुलर वैक्सीन एक पर्टिकुलर एज में दी जाती है, ठीक है। अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन इन अ पर्टिकुलर एज एंड दिस schedule is known as immunization schedule, ठीक है। you can write this also,
Schedule you don't have to remember. If you have your card, hospital card, you can see there also. Okay, this schedule you will do it in the 9th standard. Okay, a particular vaccine is given at a particular एज. अभी ये नहीं है कि कोरोना वैक्सीन जो हमने बड़ों ने लगाई है वही हम छोटे बच्चों को वही उतनी ही स्ट्रेंथ की लगा देंगे. ठीक है, एज के हिसाब से बेटे स्ट्रेंथ की वेरिएशन आती है. सेम स्ट्रेंथ की ड्रग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव भी तो होना चाहिए. ओके, अगर उन्होंने सेम स्ट्रेंथ की लगा दी तो फिर तो गए. ठीक है, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन. ओके, अरे बेटे कृतिका, ये मैंने बात आपको पहले भी समझाई हुई है कि कुछ जो वायरस है ना उनका बेटे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाहर एक्टिव नहीं है, हमारी बॉडी में एक्टिव है. तो वैक्सीन कैसे बनाए? पहले वैक्सीन को तो स्टडी तो कर लें भी वो कितने को डेंजरस है, उनको अच्छे से. अगर मारना भी तो हमने अपने हिसाब से ही है. अगर हमने कम मार दिया, ज्यादा मार दिया, तो वो हमारी बॉडी को डेंजरस भी हो ही सकते हैं नहीं. इसलिए वैक्सीन बनने को इतना टाइम लगा है क्योंकि जिस चीज का पता ही नहीं वो क्या कर रही है, वो कितना हमें हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर सकती है, वो हमें कितनी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है. अब हमें पता है, अगर हमें ये ही नहीं पता कि उन सोल्जर के पास हथियार ही कौन कौन से हैं, हम ऐसे ही अपनी तरफ से वो सोल्जर उठाया, हमने उसको खाना पीना छोड़ा, हमने देखा ही नहीं कि मतलब छुपी हुई तोहफे भी लेके घूम रहा है और मिसाइल्स भी लेके घूम रहा है. एंड हम इतना अच्छे से किल ना करें उनको जितना रिक्वायर्ड है, तो दे आर डेंजरस टू अस. ठीक है, इसलिए वैक्सीन आने को टाइम लगता है. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग, साइंटिस्ट आर सर्चिंग. और दूसरा, ये जो वायरसेस हैं दे आर म्यूटेंट्स, वो अपने आप को बारी बारी म्यूट कर देते हैं. कभी उनका सेल जो न्यूक्लियर कोड अलग बनता है एवरी टाइम. कभी तो इतनी जो ये आप कह रहे हो the layers the corona third wave is coming now, fourth wave is coming. Why these waves are coming and again? Because the virus is muting itself again and again. उन्होंने अपना डीएनए आरएनए का जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ना वो चेंज करी जा रहा है. तो पहले स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, देन सेकंड स्ट्रक्चर वो नया बना जाता है. ठीक है, और कुछ डिजीजेज हैं वो इतना वायरस पावरफुल नहीं होता, जो छोटे होते हैं, डीपीटी बीसीजी वैक्सीन लगाते हो छोटे से, तो वो उनको पता है कि जैसे हम पोलियो की ड्रॉप्स डलती है ना, तो पोलियो की ड्रॉप भी वैक्सीन है. आपको पता है पोलियो की ड्रॉप्स इंडिया ने, पनेशिया ने पेटेंट करी हुई है. पेटेंट का मतलब है कि वो ड्रग कोई और कंट्री और कोई पनेशिया बायोटेक जो चंडीगढ़ में उसके अलावा कोई सिंथेसाइज नहीं कर सकता. जब हम किसी ड्रग को पेटेंट कर लेते हैं तो वो वही सिंथेसाइज कर सकते हैं, वही मार्केट में बेच सकते हैं, उसका फॉर्मूला कोई और यूज नहीं कर सकता. अगर कोई और यूज करेगा, चाहे उसको पता चल गया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी उसी फॉर्मूले से. ऐसे कई लोग अपना खाना पेटेंट करते हैं. पेटेंसी का मतलब ये है कि व्हेन this will done by us only, and if you will take the same formula that we are using it, you will be highly punished. Okay, got it? ठीक है. और the last thing, like we are doing medicinal use, this bacteria, some of the bacteria is used for making vitamins like vitamin B complex also and all. ठीक है. So we have done what importance we have done in food, we have done commercial, and now we are done medicinal.
In medicinal importance, we have done about which antibiotic is synthesized by the scientists. The first scientist to synthesize antibiotics, that is called Alexander Fleming. And again, there was a doctor which have synthesized or made a first vaccine, that is vaccine of smallpox. It was made by a scientist, no, it is a doctor actually, Edward Jenner. ठीक है, अब जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट आई थी बेटे, और वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर था, ब्रिटिश डॉक्टर था, ने वैक्सीन बनाई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उसने बनाई कैसे, चलो हम ये भी स्टोरी बात करें। स्टोरी कुछ इस तरह थी कि तब ना स्मॉल पॉक्स बहुत फैल रहा था। ठीक है, इट इज अराउंड 1798, बहुत ज्यादा स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक, जैसे कि कोरोना अभी एंडेमिक स्टेज में है, वहां पे एपिडेमिक बहुत फैल गया था। ठीक है, तो जो जेनर था उसने देखा कि एक मिल्कमैन है, मिल्कमैन जिसको पहले कहीं काउ पॉक्स हुआ है, उसको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। ठीक है, एक बंदा था जिसको कभी काउ पॉक्स हुआ होगा बहुत पहले, तो उसको ना अभी जब एपिडेमिक फैली है स्मॉल पॉक्स की, तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा क्योंकि उसको पहले काउ पॉक्स हो गया। ठीक है, अब उस एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उस काउ पॉक्स के जो जर्म्स है ना, वो उस मिल्क मेड से, जो वो दूध बेचने वाला है, उससे वो लिए, उसकी जो ब्लिस्टर्स हैं, जो उसकी ब्लिस्टर्स बने होंगे काउ पॉक्स के कारण, जो ब्लिस्टर्स बने हुए थे, उसकी जो आर्म पे ब्लिस्टर थे उसमें से उसने वो क्या किया, जर्म्स ले लिए, और जो जर्म्स है वो एक छोटे से 8 ईयर के बॉय के अंदर डाल दिए। अब बॉय देखो, अब जर्म्स डालेंगे तो बॉय को काउ पॉक्स तो होगा ही होगा। ठीक है, काउ पॉक्स तो होगा, अगर उसने जर्म्स लिए हैं तो इट विल सफर फ्रॉम द काउ पॉक्स। तो 8 ईयर बॉय को काउ पॉक्स हो गया। अब काउ पॉक्स जो डिजीज है वो इतनी इन्फेक्शियस नहीं है, इतनी डेंजरस नहीं है, तो वो ठीक भी जल्दी से हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद उसने वही जर्म उसी बॉयज को अब काउ पॉक्स ना छोड़ के बेटे स्मॉल पॉक्स के जर्म्स उसमें इंजेक्ट करवाए। अब दोनों वायरसेस का, ये दोनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मोर और सिमिलर है, मगर एक ज्यादा डेंजरस है, एक कम डेंजरस है। तो जब स्मॉल पॉक्स की उसको इंजेक्ट करवाई, जिसको काउ पॉक्स हो चुका था, जो बॉय था उसको काउ पॉक्स हो चुका था, तो उसमें अगर स्मॉल पॉक्स के जर्म उसने इंजेक्ट करवाए, तो उसने क्या देखा कि उसको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी के खिलाफ, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने ऐसे वैक्सीन प्रोड्यूस करवाई, किसके अगेंस्ट बेटे, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है, समझ आ गई बेटे, बड़ा सियाना था, उसने ये देखा कि एक बंदे को he suffered from cowpox earlier, so now he is not suffering from the smallpox when there is epidemic. So what he have taken the germ from the blisters of the milkmaid and injected in the 8-year-old boy. When he have injected them in the 8-year-old boy, what happened, he developed the symptom of the cowpox, but he recovered soon because that disease is not so much dangerous. Now, when he injected the germs of the smallpox to the same boy, after means after 1 month or so, ठीक है, मान लो 1-2 महीने के बाद ना, वो क्योंकि वो रिकवर हो गया था, तो उसने he have injected the germs of the now smallpox. What happened? The boy has already developed the immunity against the germs, so he haven't suffered the smallpox now. Okay, this is all about the Edward Jenner and how
he have developed the vaccine. Any doubt? Yes bete, any doubt? You all are there? Only Khyati. Where the rest one? Avdi. Yes, where are the rest? Yes. Okay, Jabji, Ishan, Harshita, है ना? Pragati, Ritesh. Got it? So this is all about the uses of microorganism in the medicine. It can be used for the vaccines, it can be used for the antibiotics, and it can use to make certain vitamins. Okay? Okay, and we have already done for the commercial use. Yeast के बारे में पढ़ा, wines वगैरह बनाने में help करता है. And in the food also we have done. Only 2 minutes are remaining. And now the next is to increasing the soil fertility. This you know, I think all are knowing about how soil fertility can be increased by the bacteria and which type of the bacteria is increasing the soil fertility. This I'll ask you tomorrow. आप मुझे आंसर्स बताओगे बेटे सॉइल फर्टिलिटी कौन सा बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है. ठीक है, ओके. और हमने नाइट्रोजन साइकिल भी करना है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एनी डाउट यू कैन आस्क. नो डाउट, यू ऑल आर इंटेलिजेंट हैं. So you must be intelligent during exam also. Yes, yes, Rhythm. Yes, Rhythm, you can unmute yourself. डेफिनेशन बोल दो और एक बार वैक्सीन समझा दोगे थोड़ा सा. बेटे वैक्सीन मैंने कितनी बारी कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक करके या उनको मार के डेड करके ना हाफ डेड करके हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है. जब वो हाफ डेड करके या मार के हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है ना, मैंने हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ बेटे, सोल्जर्स हैं जिनके पास सारे हथियार हैं मगर उनको खाना पीना नहीं दिया हुआ हमने, बिल्कुल उनको ऐसे भेज दिया. अब हमें मान लो हमारे साथ टेकिंग एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान वालों ने सोल्जर दिए, उनको खिला पिला के नहीं भेजा, कमजोर करके भेज दिए, मगर उनके साथ ना वेपन सारे भेज दिए. अब इंडिया वालों को पता चल गया कि उनके पास वेपन क्या है, तो जब वो बिल्कुल खा पी के आएंगे ना तो वी आर वेरी मच अवेयर कि इनके पास ये वाले वेपन्स हैं और ये ऐसे सोल्जर्स हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट टाइम जब वो खा पी के भी आएंगे ना तब हम उनके खिलाफ लड़ने के खिलाफ रेडी होंगे. इन द सेम वे व्हेन अगर हमारे अंदर ऐसे सोल्जर डाल दिए जाएं जो दे आर किल्ड तो हमारी बॉडी पहचान लेगी. ठीक है, व्हेन दे आर नॉट पार्शली किल्ड. गॉट इट?